Hello students, beta in this video we are going to discuss about meter bridge or slide wire bridge. Meter bridge ਤੇ slide wire bridge ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ slight ਜਿਹਾ difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ during the lecture ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what is meter bridge, what is slide wire bridge। ਬੇਟਾ meter bridge ਤੇ slide wire bridge Wheatstone bridge ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Wheatstone bridge ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਥਿਊਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਊਰੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ Wheatstone bridge ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਜਾਂ Wheatstone bridge ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, meter bridge या slide wire bridge is the practical form of practical application of Wheatstone bridge। Agreed? मैं तुहानू शो करदा है कि meter bridge ਦੇ ਵਿੱਚ Wheatstone bridge ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ Wheatstone bridge। ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ Wheatstone bridge ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਮੀਨਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੱਟਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਉਗੀ, स्ट्रिप आओगी, एक स्ट्रिप आओगी। एल्यूमीनियम ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਨ। ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਔਰ ਮੈਗਨੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਤੇ ਮੈਗਨੀਨ ਅਲੋਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੈਂਟਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਨ ਅਲੋਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्लियर? तो एवे बेटा वुडन बोर्ड हो गया, वुडन बोर्ड ते आ एल्यूमीनियम या कॉपर दी स्ट्रिप्स। एक स्ट्रिप इधर होगी बेटा, आ सेंटर वाली एक स्ट्रिप आ होगी। जेडी ए स्ट्रिप है ये सारी ए पॉइंट दिखाया है, ए Wheatstone bridge दा ए पॉइंट। ठीक है? जेडी आ वाली स्ट्रिप है, आ वाली स्ट्रिप ये सारे सी पॉइंट दिखाया है, सी। जेडी आ सेंटर वाली स्ट्रिप है इनु डी पॉइंट दिखाया है, इज बी। सारा डी पॉइंट है। बी पॉइंट कितने बनेगा मैं तुमको समझाना है। मैं 3 पॉइंट्स का दस है ना, ए सी एंड डी। दिस इज ए बी, ए सारा ए है ना, आ डी है सारा, ये सारा सी है। क्लियर? बस दिस अरेंजमेंट जेडी आ वाली बन गई वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के ऊपर एल्यूमीनियम दी स्ट्रिप्स ते वायर, that is meter bridge। ठीक है? why it is known as meter bridge? क्योंकि ये वायर है, ये वायर 1 मीटर लॉन्ग होगी बेटा। आ वाली वायर ये 1 मीटर लॉन्ग होगी, 1 मीटर। टाइम लगोगी 1 मीटर लॉन्ग वायर का ब्रिज बना हुआ है, आ वाला ब्रिज। ठीक है? क्योंकि जी वायर है ये 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर, इस करके इसका नाम की पै गया मीटर ब्रिज। ठीक है? ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि अगर मीटर ब्रिज, अगर ये अपरेटस मीटर ब्रिज है तो 101% ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, 1 ਮੀਟਰ। ਜੇ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਐਗਰੀਡ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 मीटर तो घट भी हो सकती है एंड 1 मीटर तो ज़्यादा भी हो सकती है स्लाइड वायर ब्रिज की। बट मीटर ब्रिज की लेंथ 101% 1 मीटर ही हुई। ठीक है? वर्किंग
मीटर ब्रिज की वर्किंग ते स्लाइड वायर ब्रिज की वर्किंग दोनों का प्रिंसिपल की है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, स्लाइड वायर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। दोनों सेम चीज़ां ने, बस इतना फर्क है कि अगर ये लेंथ 1 मीटर है तो तुम इन्हें मीटर ब्रिज भी कह सकते हो, स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हो। ओके, पर अगर ये लेंथ 1 मीटर ना हो घट या 1 मीटर ना हो ज्यादा है फिर तुम इन्हें मीटर ब्रिज ना बोलो, फिर तुम इन्हें की बोलो स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है बेटा, why this apparatus is known as meter bridge? Because it carries a bridge of 1 meter long wire. It carries a bridge of 1 meter long wire. That's why it is known as meter bridge. Why it is known as slide wire bridge? क्योंकि इस पे ऐसी जी रीडिंग लेनी है वो वायर पे ना जोकी को स्लाइड करके लेनी है। मैं थोड़ा आगे दोबारा तो रिपीट करूंगा ये क्वेश्चन, why it is known as slide wire bridge, तो वो समझ आ जाएगा तुमको। क्लियर? ओके, तुम चेक करो बेटा, अगर आप कनेक्शंस करिए, कनेक्शंस ए पॉइंट किस बैटरी के किहड़े टर्मिनल नाल जुड़िया होया है? पॉजिटिव। ए पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नाल जोड़ते हैं। स्विच नेगेटिव स्विच ਨਾਲ स्विच भी किस पॉइंट ਨਾਲ जुड़ा हुआ है? सी पॉइंट ਨਾਲ। तो इस स्विच ਨੂੰ ਅਸੀਂ जोड़ ਲਾਂਗੇ सी पॉइंट। ठीक है बेटा, पूरे ही लगी हुई है स्केल रीडिंग नोट करने वास्ते। ये बेटा स्केल है हमारा। दिस इज अ स्केल रीडिंग नोट करने वास्ते। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ए पॉइंट ਨੂੰ कनेक्ट करता बेटा पॉजिटिव ਨਾਲ, नेगेटिव ਨੂੰ कनेक्ट करता सी पॉइंट। ठीक है, जेड़ा बिटवीन आ जेड़ा आ वाला गैप है बेटा ए एंड डी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ब्रिज ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਫਟ ਗੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਈਟ ਗੈਪ। ਰਾਈਟ ਗੈਪ ਇਹ याद रखने ने न्यूमेरिकल्स वास्ते। लेफ्ट गैप, लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप को लेफ्ट गैप, राइट हैंड साइड वाले गैप को राइट गैप। चेक करो ए एंड डी ਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम्स की लगा हुआ है बिटवीन ए एंड डी, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी डायग्राम्स देखो की लगा हुआ है बिटवीन ए एंड डी। की लगा है बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, है ना, इथों ਅਸੀਂ लगाने हैं रेजिस्टेंस बॉक्स जिहदी रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ चेंज कर सकते हैं। इट इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स वेरिएबल होता है, इसकी रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ चेंज कर सकते हैं। ये ਸਾਨੂੰ आर का रोल प्ले करेगा, इट प्लेज द रोल ऑफ आर। ਹੁਣ चेक करो सी एंड डी की लगा हुआ है, सी एंड डी देखो की लगा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस एस। तो जेडी अननोन रेजिस्टेंस है बेटा वो अंदर लगा हुआ है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस एस, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस एस। मतलब जेडी रेजिस्टेंस वेरिएबल होवे वो लेफ्ट गैप च लगानी है, जेडी अननोन ਅਸੀਂ पता करनी है वो राइट गैप च लगाओगे, राइट गैप। क्लियर? और चेक करो डी पॉइंट किस नाल कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर नाल। तो ਅਸੀਂ इथों ਜਿਹੜਾ सेंटर ਦਾ डी पॉइंट है ਇਹਨੂੰ गैल्वेनोमीटर नाल जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को ਅਸੀਂ कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस known as जोकी। गैल्वेनोमीटर का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता बेटा, जिवें मर्जी लगाई जाओ गैल्वेनोमीटर। ओके, सो डी पॉइंट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वायर की हेल्प नाल लेके एक डिवाइस जिसको कहते हैं जोकी ना एक पेन वर्गी डिवाइस होती है, जैसे जब अपना मार्कर है ना, एज ए मार्कर वर्गी एक डिवाइस होती है। उसके पीछे बैक साइड एक टर्मिनल होता है, उन्हें ओपन करके उस वायर कनेक्ट करके उन्हें कस देने हैं, फिर वो डिवाइस एक पेन की तरह जिवें असीं पेन नूं ग्रिप कीता है एवें ग्रिप कीती जा सकती। दैट डिवाइस इज नोन एज जोकी। ओके, पेन वर्गी डिवाइस होगी, मार्कर वर्गी डिवाइस होगी। ठीक है, तो हम चेक करो। अच्छा, इस जोकी की हेल्प के नाल असीं फाइंड करेंगे बी पॉइंट। ठीक है, तो हमने जो सारा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। किवें बन गया मैं समझाना है, वेट समझ गए? बिटवीन ए एंड डी की लगा है बेटा
ए एंड डी की लगे हुए आर, सी एंड डी की लगे हुए एस, सी एंड डी एस, ठीक है। जे पॉइंट की हेल्प नाल ਅਸੀਂ फाइंड करांगे बी, बी पॉइंट, एंड फिर ए एंड बी जो होएगी वायर वो किस दा रोल प्ले करेगी, टी दा, बी एंड सी जो वायर होगी किस दा रोल प्ले करेगी, क्यू। वो मैं समझाना है, वेट मैं समझा कि हम ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्विच ऑन करांगे, ठीक है, स्विच ऑन करने ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਗਿਵਸ ਅ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਗਿਵਸ डिफ्लेक्शन, समझ गए। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜੋਕੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ, ਜੋਕੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ जिस पॉइंट ते गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होएगी, उस पॉइंट को ਅਸੀਂ बोलांगे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। वो फाइंड करना है, वो पूरी वायर ते 2 या 3 पॉइंट्स नहीं होंगे, एक ही पॉइंट होएगा, ਅਸੀਂ वो ਲੱਭਣਾ है विद द हेल्प ऑफ जोकी। समझ गए की करना है, जोकी ਨੂੰ वायर ते टच करना है, वायर ते टच करना है, ओके। वायर पे जो जोकी टच करोगे गैल्वेनोमीटर की देगा बेटा डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर ना ऐसे होता है, ਇਹਦੀ ਨੀਡਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ 0 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਕੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਡਲ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ हिले ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ठीक है, नीडल डिफ्लेक्ट होएगी, ओके। तुसी पूरी वायर पे एक पॉइंट यह जा फाइंड करना है जिथे तुसी जोकी टच करो, जिथे तुसी जोकी टच करो एंड गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की रहे 0, ना नीडल इधर को हिले ना नीडल उधर को हिले, डिफ्लेक्शन 0 आवे। उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होएगी उस पॉइंट को ਅਸੀਂ ਕੀ बोलांगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। की बोलोगे बेटा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ਅਸੀਂ ਉਹ फाइंड करना है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ फाइंड ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ है, ਇਹ ਨਾ रैंडमली ना टच करेगा, शुरू तो लगे करो जिਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀ टच ਕੀਤੀ, चेक ਕੀਤਾ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 ਤਾਂ नहीं आई, 0 नहीं आई, पूरा जो की ने चेक की, अगे टच की नहीं आई, फिर अगे टच कर, ऐसे थोड़ा थोड़ा मूव करवाई जाए करो, जो कि टच की थी डिफ्लेक्शन 0 नहीं आई, फिर अगे टच की थी, फिर अगे फिर अगे फिर अगे जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 आ गई, सपोज करो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 आ गई, इस पॉइंट को बी पॉइंट बोलो, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, ये बी पॉइंट बोला जाता है बेटा नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, समझ गए। हुन जेडी बिटवीन ए एंड बी वायर है, इस वायर की जो लेंथ है, लेंथ ये किसका रोल प्ले करेगी बेटा, पी का, क्योंकि बिटवीन ए एंड बी चेक करो, बिटवीन ए एंड बी केडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, पी। दैट मींस जेडी वायर की रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर प्लेज द रोल ऑफ पी। चेक करो बी एंड सी की लगा हुआ है, बी एंड सी की लगा है बेटा, क्यों, मतलब जेडी इस वायर की लेंथ है, इस वायर की लेंथ किस द रोल प्ले करेगी, क्यों। ओके, अच्छा सपोज दिस इज मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज है तो बेटा टोटल लेंथ कितनी हुई, एक टोटल लेंथ वायर 10 टोटल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। अगर उसको ए लेंथ l है,
दिस इज L, इफ दिस लेंथ इज L, तो बेटा आ वाली लेंथ कितनी बनेगी? दिस इज 100, दिस इज L, सो दिस इज 100 minus L. जे सेंटीमीटर च बेटा, इफ L इज इन सेंटीमीटर तो 100 minus L करना है, ठीक है? इफ L इज इन मीटर तो 1 minus L करना है। समझ गए? कंफ्यूज ना होइयो। जे L मीटर च है तो ए भी मीटर च लेनी पड़ेगी ना, फिर L मीटर च है तो इत्थे करांगे 1 minus L, 1 minus L। बट अगर L सेंटीमीटर से लाइक 20 सेंटीमीटर, फिर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 100 minus 20, क्योंकि ये 20 है तो रिमेनिंग 80 रहेगी ना, बोलो। तो अगर ये L सेंटीमीटर से है तो बेटा ये 100 minus L करना होता है, जे L मीटर से है तो ये 1 minus L करना होता है, ठीक है? एंड कदों जो ये मीटर ब्रिज है, जे स्लाइड वायर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज, फिर बेटा ये लेंथ 100 सेंटीमीटर तो घट भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। मान लो ये 90 सेंटीमीटर हुई, इफ दिस इज 90 सेंटीमीटर, फिर अगर ये L है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 90 माइनस L, जितनी लेंथ होगी उस लेंथ जो ये L माइनस करेंगे R। L is known as बैलेंसिंग लेंथ। L क्यों बोला है बेटा? बैलेंसिंग लेंथ। समझ गए? समझ आ गया हम तक? की दस बेटा बोलो। जो ਅਸੀਂ स्विच ऑन करांगे, स्विच ऑन करने तो बाद ਅਸੀਂ ज्योति ਨੂੰ वायर ਤੇ टच करना है, वायर ਤੇ टच करांगे, गैल्वेनोमीटर की देगा डिफ्लेक्शन। ਅਸੀਂ पूरी वायर ਤੇ एक पॉइंट है ਜਾਂ फाइंड करना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की होगी 0। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ पूरी वायर ਤੇ 3 या 4 पॉइंट्स नहीं ਹੁੰਦੇ जिस पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। ये पूरी वायर पे इको ही पॉइंट होता है एंड ਅਸੀਂ ਉਹ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ज्योति, जो कि टच करता है। जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आएगी उस पॉइंट को ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ बेटा? नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट। फिर A तो B तक की लेंथ, जो A तो B तक की लेंथ है, दैट लेंथ इज नोन एज बैलेंसिंग लेंथ। ये लेंथ पता चल गई तो 100 जो आ लेंथ माइनस करके आ फाइंड। A लेंथ बिटवीन A एंड B है, तो A एंड B के बीच जो लेंथ है, A लेंथ की जो रेजिस्टेंस होगी वो P का रोल प्ले करेगी। जो B एंड C के बीच लेंथ है, इस लेंथ की रेजिस्टेंस जितनी होगी वो किसका रोल प्ले करेगी? Q का, क्योंकि A एंड B के बीच से की लगाई हुई है बेटा P, एंड B एंड C से की लगाई हुई है Q। चार रेजिस्टेंस है क्या अंदर? चेक करो अंदर चार रेजिस्टेंस बन गया। R रेजिस्टेंस आ होगी बेटा लेफ्ट कैच, S रेजिस्टेंस होगी राइट कैच, P रेजिस्टेंस होगी अ बैलेंसिंग लेंथ की रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस होगी अ रिमेनिंग लेंथ की रेजिस्टेंस, एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड। बन गया ना ब्रिज? अ चार रेजिस्टेंसेस को लेके ब्रिज बन गया एंड ब्रिज बैलेंस्ड है। व्हाई? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है। जे की डिफ्लेक्शन 0 है तो ਅਸੀਂ अप्लाई कर सकते हैं P/Q = R/S, है ना? मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखाना है। वेट अ मिनट। यस, सपोज करो एक पूरी वायर दी यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस R, लेट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ ब्रिज वायर इज R। मैं क्लियर किया बेटा भी जेडी ब्रिज वायर है, ब्रिज वायर है, इसकी यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर ली स्मॉल r। जब बेटा यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस r है तो L लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी हुई? रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ वायर। बेटा यूनिट लेंथ की r है, L लेंथ की कितनी हुई? Lr। दिस रेजिस्टेंस प्लेज द रोल ऑफ P। जी L लेंथ की रेजिस्टेंस आ गई, एक P का रोल प्ले करेगी। तब बेटा 100 माइनस L लेंथ की कितनी रेजिस्टेंस हुई? रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L
लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी बेटा, यूनिट लेंथ दी रेजिस्टेंस आर है, यूनिट लेंथ दी रेजिस्टेंस आर है, तो 100 माइनस एल लेंथ दी रेजिस्टेंस होगी 100 माइनस एल इनटू आर। दिस प्लेज द रोल ऑफ क्यू। तो बेटा एल लेंथ दी रेजिस्टेंस, एल लेंथ दी रेजिस्टेंस P and 100 minus L length resistance Q, है ना, because bridge is balanced, bridge is balanced, है ना, bridge balanced है तो ਅਸੀਂ अप्लाई कर सकते हैं P upon Q is equal to R upon S, अप्लाई कर सकते हैं तो P की वैल्यू कितनी LR, Q की वैल्यू कितनी 100 minus L into R, R की वैल्यू लेफ्ट गैप चों पता चलेगी, S ਅਸੀਂ फाइंड करना है, R ਨਾਲ R कैंसिल क्रॉस कर दो, S is equal to R 100 minus L ऊपर L नीचे। चेक करो ये फार्मूला बन गया, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ R मतलब resistance used in left gap, resistance used in left gap, and what is L? L is balancing L, null deflection point the length, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ null deflection point ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ length ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ left gap 'ਚ ਕਿੰਨੀ resistance ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ S फाइंड कर सकते हो, एंड ये फार्मूला इस फार्मूले को है इस, है ना, दैट मींस मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज दे ऊपर वर्क करता है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज दे फार्मूले को सी मीटर ब्रिज का फार्मूला, मीटर ब्रिज दे विच अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वास्ते सानू दो चीज़ां चाहिए, एक लेफ्ट गैप की रेजिस्टेंस है सानू पता होगी, एंड एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की लेंथ नोट करनी है, लेंथ वो नोट करके वैल्यूज पुट करके ਅਸੀਂ S फाइंड कर सकते हैं। क्लियर समझ गए? ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ क्वेश्चन आंसर व्हाई दिस apparatus is known as slide wire bridge, बिकॉज ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ਉਹ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ फाइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋਕੀ ਨੂੰ वायर नाल टच करके ਅਸੀਂ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज, बिकॉज why it is known as slide wire bridge, because we find the null deflection point by sliding jockey on bridge wire, by sliding jockey on bridge wire, that's why it is known as slide wire bridge. Why it is known as meter bridge? Because it contains, it carries 1 meter bridge wire, 1 मीटर ब्रिज वायर है, दैट्स व्हाई मीटर ब्रिज कहा जाता है। समझ आ गई बेटा, सारा कंसेप्ट समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू वेरी मच।